Yes, again a very good morning to one and all. Today's our topic in 12th economics, derivation of S function in the chapter determination of income, employment and output. Okay, let us start with the topic derivation of S function. Let it be S. Why S? Because S stands for saving. One more concept is there, C consumption, or I could say C denotes for the consumption. In earlier session, we had gone through with the C function that C says C bar plus B1. If we will go for the formula of C, we have to use C bar plus B1. And one more term was Y, that is income. And we all know very sure that income has two components, consumption or saving. Either we go for the consumption or we can go for the saving. But only saving cannot take place. Why? Because C bar means some autonomous consumption will be made there. And what autonomous consumption is? At the level of income 0, the consumption is there, that is called autonomous consumption. Okay, so our topic is derivation of S function from C function. Let me write over here, from C function. Okay, derivation of S function from C function. What it says, we are having income, we are having consumption, then how can we find saving function? Before moving ahead, I would like to write here the formula of linear saving function. Linear saving function. How this functions arrives? We were having a formula of C, that is C bar plus By. We are also having the formula of S, that is Y minus C. We are having the formula of Y minus C. Okay. Let the Y remain same. Let the sign remain same, minus. Let change the term of C. We can write over here C bar plus By. Let me write over here C bar plus By. Why I can write over here C bar plus By? Because the C bar plus By is the formula of C, as I have already done over here. C equals to C bar plus By. Okay, let's move for the next term. S equals to Y. Here we are having sign of minus. When we open the bracket, then plus will become minus. So minus C bar, again plus becomes minus, minus By. Here I am having the term Y minus C bar minus By. Here Y and By, these both are like terms, so I can write both of them near to each other. So minus C bar, here the Y is of plus and minus By. Understood everyone? मैंने क्या किया, माइनस सी बार को पहले लिखा और जो लाइक टर्म्स है Y और By उनको साथ में लिखा, उनकी रिस्पेक्टिव साइन के साथ. अब यहाँ पर साइन कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है. सो आई कैन राइट माइनस सी बार प्लस वाई माइनस By. ओके, अब यहाँ पर देखते हैं माइनस सी बार प्लस, इनको अगर मैं ब्रैकेट में रखूँ सो y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है. यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, b. सो y और y जो है वो तो कॉमन मिल गया, लेकिन ब्रैकेट में हमें क्या मिला, 1 माइनस b. सो दिस इज द लीनियर सेविंग फंक्शन S. ओके, सो S इक्वल्स माइनस सी बार प्लस 1 माइनस By. ये हो गया हमारा लीनियर फंक्शन. कौन सा, लीनियर सेविंग फंक्शन. यूज क्या है इसका, तो एक बार हम लोग एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला को प्रूव करते हैं. किसको, इस फॉर्मूला को देखते हैं कैसे करते हैं. मैंने यहाँ पर एक टेबल लिया है जहाँ पर मेरे पास y है और क्या है, C बार है. ये अब C नहीं रहा, ये क्या हो गया C बार. क्यों, बिकॉज ये कंजप्शन किसके ऊपर है, 0 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट द S. What we are having in the formula, minus C bar, let it be right, C minus C bar plus
1 minus by. Now minus c bar, I am having here c bar's value is as 50, so I would write minus 50 plus 1 remains same minus and b. B represents MPC. Here I would write B equals to MPC. Never forget. Okay. So minus 50 plus 1 minus B. B is MPC and what we are having MPC as 0.5. MPC is 0.5. MPC equals to 0.5. Now let's take the example for y. We are having y is 0. Okay. Move forward. Minus 50 plus 1 minus 0.5, that is 0.5 and multiply by 0. Any number multiplied with 0, the answer will remain 0. So no need to write 0. We are having only minus 50. That is our S. We are having S minus 50. Yes. It means that this formula works. Now take one more example. Any of the income level. Okay, let's take the income level of 200. Now go for the same formula. S equals to minus C bar plus 1 minus by minus C bar is we are having 50 plus 1 minus 0.5 and y. Now we are having y as a 200. Y as 200 minus 50 plus 1 minus 0.5 is 0.5 and it will get multiplied with 200. 2 5s are 10 and 1 0. So we are having minus 50 plus 200 multiply 0.5. What we will get? We will get 100. And 100 minus 50, the answer is 50. It means that saving is 50. Let me check over here. Saving is 50. So is it clear to you all? We are having the function of saving, we are having the function of consumption. For consumption function, we are having the formula C bar plus by, and for linear saving function, we are having the formula S equals minus C bar plus 1 minus by. ये माइनस सी बार प्लस 1 माइनस by किस तरीके से आया है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमारे पास फॉर्मूला था S का y माइनस c. Y will remain as it is in the next step, but the value of c we can put over here C bar plus by. Let the sign remain same. Y minus C bar plus minus minus by, and we keep the y and by together and let the C bar will write over here. We will get the formula minus C bar plus 1 minus by. ये आज तक किसी ने एक्सप्लेन करके नहीं बताया होगा, ना ही किसी वीडियो में बताया होगा. समझ में आ रहा है? सो दिस वाज योर फॉर्मूला. अब देखो फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिया. अब हमें देखना है डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन. हमारे पास सी फंक्शन था, उसमें से हमने एस फंक्शन भी ले लिया और हमारा टेबल जो है वो फुलफिल भी हो गया. अब इस कर्व की बात करते हैं. इस कर्व में कैसे काम कर रहे हैं? जब मैंने पहले इस एस फंक्शन के साथ y को 0 रखा था तब सेविंग थी माइनस 50. अब इस कर्व में आइए, ये कर्व जो है यहाँ पर y, c और s, ये तीनों शो कर रहा है y, c और s. अब जो सेविंग है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं y माइनस c, लेकिन हमने लीनियर फंक्शन से भी इसको प्रूफ करके दिखाया है. अब देखो जीरो लेवल के ऊपर सेविंग कितनी है? माइनस 50 है. सो हमारी इनकम जो है ये इनकम का एक्सिस है. इस जीरो इनकम के ऊपर सेविंग कर ओ वाई डैश हमारे पास क्या है? माइनस में है. तो जीरो के ऊपर हमारा सेविंग क्या है? माइनस 50. जब इनकम बढ़ जाती है ₹50 पर, तब सेविंग कितनी हो गई हमारी? माइनस 25. कितनी हो गई? माइनस 25. यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि 25 रुपए इनकम बढ़ गई. क्यों बढ़ गई है? क्योंकि पहले हम लोग 50 नेगेटिव में थे, अब सिर्फ 25 नेगेटिव में, मतलब 25 रुपीज हमने क्या कर लिए? बचा लिए, और वो हमारी हो गई इंक्रीज सेविंग. तो जब
हम लोगों ने इनकम बढ़ाई तो सेविंग बढ़ गई, सेविंग बढ़ गई तो यहाँ पर ये पॉइंट शो कर रहा है -25 सेविंग इंक्रीजेस। जब इनकम 100 थी और कंजप्शन भी 100 था तब सेविंग कितनी हो गई, 0 हो गई। तो 0 इनकम के ऊपर हमारी 0 सेविंग, 0 इनकम के ऊपर हमारी 0 सेविंग। क्यों? क्योंकि 100 इनकम और 100 हमारा कंजप्शन। y इक्वल्स टू सी, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं y इक्वल्स टू सी, देयरफॉर s इक्वल्स टू 0। इनकम और कंजप्शन 100 रुपए थे, इसलिए सेविंग क्या हो गई, 0। क्यों? बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ s शोज y माइनस सी, 100 माइनस 100 क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर कितनी हो गई, जब इनकम 200 थी, अब इनकम 200 है तो हमने यहाँ पर प्रूफ ही किया है, जब इनकम 200 थी तो सेविंग कितनी, 50 हुई, तो ये रहा हमारा 50 सेविंग। हमारी सेविंग क्या हो गई, 50 रुपीज। इनकम बढ़ गई, 300 पर गए तो सेविंग क्या हो गई, 100 हो गई। 400 पर गए इनकम में तो सेविंग क्या हो गई, 150 हो गई। और जब हम लोग 500 पर आए तो सेविंग क्या हो गई, 200, तो ये हो गई सेविंग 200। इस सेविंग कर्व से एक चीज ये समझ में आई कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस, इनिशियली वी वर हैविंग इनकम ऑफ 0, व्हेन इनकम इंक्रीजेस saving also increases, saving also increases. Why? Because we do less and less consumption. If we will go for less and less consumption, it means that we are going on increasing our saving. We are having only two components of income, one is consumption and one is saving. अगर consumption कम कर दिया तो saving को बढ़ा देंगे, तो सेविंग बढ़ रही है यहाँ पर, पहले नेगेटिव में फिर 0 और फिर हो गया यहाँ पर सेविंग पॉजिटिव। तो ये जो एरिया है यहाँ पर कंजम्पशन और इनकम के जो बीच का डिफरेंस है यहाँ पर, इसमें पता है हमको C ग्रेटर देन क्या है, Y। और यहाँ पर जो ब्रेक इवन पॉइंट है E, इसका मतलब क्या हुआ, C इक्वल्स टू Y। अगर C इक्वल्स टू Y है तो S क्या हो गया यहाँ पर, 0। ये हो गया डेरिवेशन ऑफ S फंक्शन। अगर इनकम ग्रेटर देन C है तो ये S क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। S कभी भी अब नेगेटिव रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि S क्या हो गया है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हो गया? क्योंकि कंजम्पशन कम हो गया और हमारी इनकम बढ़ गई। तो ये था डेरिवेशन ऑफ S फंक्शन फ्रॉम C फंक्शन। ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ किया इस फॉर्मूला को, हमने इक्वेशन सोल्व की, हमने टेबल देखा यहाँ पर और साथ ही साथ में इस कर्व को भी देखा। और ये पूरा काम जब आप लोग बोर्ड के एग्जाम में करके आओगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, या तो 4 मार्क्स में आएगा या फिर कितने मार्क्स में आएगा, 6 मार्क्स। कितने मार्क्स में, 4 और 6 मार्क्स। तो 4 या 6 मार्क्स यहाँ पर आपके पक्के हो गए। कितनी देर में, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। सिर्फ 10 मिनट में तो मैंने करवाया है। अब आप जब इसको रिपीट एंड रिपीट करोगे तो आपके 4 या 6 मार्क्स कहीं पर भी गए नहीं। अब 80 मार्क्स में से 4 या 6 मार्क्स तो आपने कंज्यूम कर लिए। अब कितने मार्क्स बचे हैं, 72। अब 72 में से भी हमने ये चैप्टर देखा था कितने मार्क्स का, 13 मार्क्स का। अब 13 में से 4 या 6 मार्क्स तो हमने कवर कर लिए। अगर 6 में आया तो 7 मार्क्स बाकी रहे, और अगर 4 में आया तो 9 मार्क्स बाकी रहे। वो भी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो चलो मेरे पीछे पीछे 2 से 6-7 मार्क्स कहाँ से पकड़ेंगे, कहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से। क्या है, ओके। सो हम लोग यहाँ से यहाँ पर आ गए हैं दूसरे 6 मार्क्स लेने के लिए। क्यों लेने के लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, वापस बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैं इकोनॉमी इक्विलिब्रियम आपको चैप्टर करा रहा हूँ, ये अगर एग्जाम में पूछते हैं तो कितने में पूछेंगे, 6 मार्क्स में। लेकिन 6 मार्क्स के लिए सिर्फ ये कंसेप्ट नहीं है, आगे और भी करवाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम। ओके, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम क्या बता रही है, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई, इफ वी आर हैविंग डिमांड एंड सप्लाई बोथ इक्वल, अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बोथ आर इक्वल, then that economy is in equilibrium. What is equilibrium? Balanced. AD equals to AS. अब AD के बारे में सबको पता है, AD refers to the sum total of output and services from 3 sectors. Which are the sectors? Primary, secondary and tertiary. Okay, so the aggregate demand says the sum total of the final goods and services. Same way में what the AS says
the total supply of goods and services. Here we were having the demand and in AS we are having the supply of goods and services available to a particular market from producer. अगर हम किसी इकोनॉमी में रह रहे हैं तो वहाँ पर हमारी डिमांड होगी और उतनी ही डिमांड की सप्लाई अगर होती है तो इकोनॉमी किसमें है, इक्विलिब्रियम। अब मुझे 5 यूनिट चाहिए कोई भी चीज, आई वॉन्ट 5 kg ऑफ वेट्स, देन देयर मस्ट बी 5 kg ऑफ वेट विद द प्रोड्यूसर टू सप्लाई, देन वी कैन से एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। और आगे पढ़ते हैं। अब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि AD इक्वल्स टू AS, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख ही दिया AD इक्वल्स टू AS। AS जो है यहाँ पर द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू अ पर्टिकुलर मार्केट फ्रॉम प्रोड्यूसर। आगे बढ़ते हैं AS के बारे में। AS का फॉर्मूला होता है C प्लस S। अब ये C प्लस S जो फॉर्मूला है ये हमने इनकम के लिए भी देखा है। किसके लिए देखा है, इनकम के लिए। तो मैं बोल सकता हूं कि AS और Y दोनों इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि Y का भी फॉर्मूला क्या था, C प्लस S, और AS का भी फॉर्मूला क्या है, C प्लस S। सो AS इक्वल्स टू Y। AS क्या हो गया, Y के इक्वल। पर AS तो किसके इक्वल है, AD के, तो इसका मतलब AD इक्वल्स AS इक्वल्स टू क्या हो गया, Y। क्या हो गया, Y। जरा देखते हैं क्या चीज है। अब ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक अप्रोच के अंदर, दैट इज ADAS अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। AD, जब मैंने एग्रीगेट डिमांड की बात की थी तो वापस से मैंने आपको बताया इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। उसके ऊपर जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर करने के लिए हमारे पास 4 कंपोनेंट थे। याद आ रहा है कुछ, 4 कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट कौन सा था, हाउस होल्ड कंजम्पशन विच इज डिनोटेड विथ C, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिनोटेड विथ I, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिनोटेड विथ G, एंड नेट एक्सपोर्ट ब्रैकेट में X माइनस M। मैं उल्टा लिख रहा हूं ताकि तुम्हें सही दिखाई दे। समझ में आ रहा है, ओके। अब ये चारों के 4 कंपोनेंट अगर हम लोग लेते तो क्या था, ओपन इकोनॉमी मींस AD इक्वल्स C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोज इकोनॉमी। सो व्हाट वी विल टेक इन क्लोज इकोनॉमी, AD इक्वल्स C प्लस I। ले सकते हैं, तो ले लिया ना, AD इक्वल्स C प्लस I, AD इक्वल्स C प्लस I। एंड AS का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया क्या है, AS इक्वल्स टू C प्लस S। अब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में चाहिए, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में चाहिए तो AD को क्या रखो, AS के इक्वल। तो AD को हम लोग लिख सकते हैं C प्लस I, तो लिखा हुआ है ना C प्लस I। क्या AS को लिख सकता हूँ C प्लस S, तो लिख दिया ना यहाँ पर भी C प्लस S। अब देखो सबको बताया कि अगर C और C लाइक टर्म्स हैं, दोनों साथ में आएंगे, साथ में आएंगे तो ये भाई साहब किस में आ जाएंगे, माइनस में, और ये भाई साहब किस में रहेंगे, प्लस में, इक्वल्स टू S। C से C कट गया तो हमारे पास क्या बचा, I इक्वल्स टू S। तो हमारे पास क्या बचा, I इक्वल्स टू S। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। AD इक्वल्स टू AS मीन्स C प्लस I इक्वल्स टू C प्लस S। C और C कॉमन कट जाएंगे, I इक्वल्स टू S। तो हमारे पास 2 अप्रोच हो गए, एक हो गया ADAS अप्रोच और दूसरा हो गया IAS अप्रोच। अब ये IAS अप्रोच जो है पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन के अंदर, कितने मार्क्स में, 6 मार्क्स। उससे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ADAS अप्रोच, कितने मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए। अब ये I क्या है, I मैंने बताया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके के। पहला इन्वेस्टमेंट क्या है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, INDUCED, एंड द सेकंड इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता है। क्यों, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज आवर फ्यूचर इनकम। हमें फ्यूचर में इनकम बनाने के लिए अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ता है, और इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो दूसरा इन्वेस्टमेंट कौन सा है, ऑटोनोमस। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर, ऑटोनोमस
यानी कि इन्वेस्टमेंट विल रिमेन सेम वेदर इनकम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, अब हमें इन्वेस्टमेंट दूसरा नहीं करना है। तो एक बार इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया तो अब इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट विल रिमेन सेम एंड दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और यही चीज हमारे कोर्स में है, सिलेबस में है। कौन सी? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और इसीलिए मैंने आई जो है इस टेबल के अंदर क्या रखा है? कांस्टेंट 100 100 100। कब? व्हेन लेवल ऑफ इनकम चेंजेस, whether it is 0 50 100 200 or whatever, we will go for the investment will remain same. Why? Because we are having autonomous investment. यहाँ तो सबको समझ में आया? श्योर? ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इन्वेस्टमेंट। अब मेरे पास यहाँ पर 6 कॉलम है और 6 कॉलम के लिए आई एम हैविंग डिफरेंट figures. Okay. Income, consumption will remain same, so saving will also remain same. Let me prove AD will always be C plus I or not, or AS will always be C plus S or not, or in equilibrium situation always AD equals to AS, yes or no? Yes. Whenever we will say economy is in equilibrium, it means that AD equals to AS. Again I am repeating, if economy equilibrium is there, economy equilibrium, economy क्या है? बैलेंस के अंदर है। तो AD और AS दोनों क्या होंगे? इक्वल। AD the total demand of goods and services। कौन से goods and services? Final goods and services। AS क्या हो गया? तो सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों क्या होगी? इक्वल। AD और AS क्या होंगे? इक्वल। सॉरी, AD और AS क्या होंगे? इक्वल। AD AS। देखते हैं AD का फॉर्मूला C प्लस I, AS का फॉर्मूला C प्लस S। इनकम तो है हमारे यहाँ पर, ठीक है। C और S 50 माइनस 50, यहाँ पर AS कितना हो गया? 0, 75 एंड माइनस 25। AS कितना हो गया? 50, 75 माइनस 25 50, 100 प्लस 0, ये क्या है? C और S। 100 प्लस 0 we are having AS is S 100, 150 प्लस 50 C प्लस S, 150 प्लस 50 we are having AS 200, 200 plus 100 C plus S means 200 plus 100 we are having AS 300, 250 as C and 150 as S. So C plus S, 250 plus 150, AS equals to 400 and C and S, C plus S, AS equals 500। सबको समझ में आया यहाँ तक? C और S को मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? प्लस किया है, ताकि मेरे पास क्या मिल जाए? AS। अब मुझे AD भी तो प्लस करना पड़ेगा, सॉरी AD भी निकालना पड़ेगा। किससे निकालेंगे? C और I। तो ये रहा C और ये रहा I। डाउट? ओके। मेरे पास C 50 एंड I am having 100, so 100 plus 50 I am having AD as of 150, I 100 and C 75, so AD equals 175, I 100 and C equals again 100, so AD equals 200, I 100 C 150, so 100 plus 150 AD equals 250। AD के लिए I and C again, I 100 and C 200, so AD equals 300। Here AD equals 350 due to C plus I and AD equals 400 due to C plus I। So AD और AS दोनों निकाल लिए हम लोगों ने, लेकिन हमारी सिचुएशन क्या बता रही है? AD equals to AS। देखो तो एक बार, कहीं इक्वल आ रहा है? यस, आ रहा है। ये आपका AD, फिर ये AS और ये आपका AD, बोथ आर इक्वल। लेकिन मैंने क्या लिखा आगे? AD इक्वल्स AS है, तो AS किसके इक्वल है? Y के, तो Y भी इक्वल होना चाहिए। तो Y के ऊपर जंप करो, ये रहा Y, ये रहा 300। सेम लेवल पर AD और AS दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। मतलब इकोनॉमी किस में आ गई? इक्विलिब्रियम। किस में आ गई? इक्विलिब्रियम। समझ में आया सबको?
वाई सी एस ए डी ए एस और आई। ए डी का फॉर्मूला सी प्लस आई और ए एस का फॉर्मूला सी प्लस एस। इस टेबल को जब आप बार बार करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकम 300 थी, वहां पर एडी भी 300 और एएस भी क्या है 300, यानी कि एडी इक्वल्स टू क्या हो गया एएस। हमारे पास क्या आ गया इकोनॉमी इक्विलिब्रियम। कोई डाउट नहीं? ओके, एक चीज और देखते हैं यहाँ पर कि जब मैंने कहा था आपको कि एडी इक्वल्स एएस है, एडी इक्वल्स क्या है एएस, तो सी प्लस आई इक्वल्स सी प्लस एस, सी और सी कट और आई इक्वल्स क्या होंगे एस और। कहा था मैंने यस और नो? तो कहीं हमारे पास आई इक्वल्स टू एस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब आई तो 100 ही है पूरा, अब एस में देखो 100 कहां पर है, तो ये रहा एस। क्या आई यहाँ पर 100 है? यस, आई भी यहाँ पर 100 है। इसका मतलब 100 इक्वल्स टू 100, आई इक्वल्स टू एस। जहां पर एडी इक्वल्स एएस है वहीं पर ही आई इक्वल्स टू भी क्या है एस, और वही कहां पर है उस इनकम लेवल के ऊपर। कहां पर? उसी इनकम लेवल के ऊपर। तो एडी इक्वल्स एएस इक्वल्स टू वाई, दैट इज आवर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम विथ एडी एएस अप्रोच। उसी एडी एएस अप्रोच से हमें दूसरा क्या मिला आई एस अप्रोच, आई इक्वल्स टू एस, आई 100 एंड एस ऑल्सो। ये था हमारा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, जिसको मैंने यहाँ पर कर्व के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है। एक बार वापस से मैं आपको इस कर्व के ऊपर लेके आता हूँ। क्यों? क्योंकि 6 मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए? 6 मार्क्स। ओके, अगेन ADAS approach we are having OX axis, we are having OY axis. On OY axis I am having AD, and on OX axis I am having income, employment and output. अब AS को मैंने क्या बताया था? इक्वल्स टू वाई बताया था। सो वाई ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इट मीन्स दैट इट मेक्स द एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये हमारा AS और ये AD। AD ऊपर क्यों है? क्योंकि इस AD के अंदर C प्लस आई है और C कभी भी 0 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कुछ ना कुछ बेसिक नीड्स हमारी होती है, जो मैंने आपको प्रीवियस टेबल में बताया था कि 0 लेवल ऑफ इनकम थी तब भी कुछ ना कुछ हमारी बेसिक नीड्स के लिए कंजप्शन था। कितना था? 50। सो इनकम 0 और कंजप्शन 50 मीन्स हमेशा पॉजिटिव होगा क्या AD। अब AD और AS कहीं ना कहीं जब इक्वल हुए, कहीं ना कहीं जब इक्वल हुए, तो कहाँ पर इक्वल हुए? वो इक्वल हुए 300 इनकम के ऊपर। कहां पर इक्वल हुए? 300 ऑफ इनकम के ऊपर। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? AD और AS। AD इक्वल्स टू AS एट लेवल ऑफ इनकम Y। समझ में आ रहा सब लोगों को? तो ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स इकोनॉमी इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर जो है मैंने लिखा है इस पोर्शन को AD ग्रेटर देन AS, और इस पोर्शन को लिखा है मैंने AD लेस देन AS। मतलब यहाँ पर डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, और यहाँ पर डिमांड कम सप्लाई ज्यादा। डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, यहाँ पर डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा। अब ये जो टॉपिक है इसके साथ साथ हमें इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के साथ साथ हमें AD ग्रेटर देन AS और AS ग्रेटर देन AD ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा मिलाकर के कितने मार्क्स में आएगा? 6 मार्क्स में। समझ में आ रहा था मेरे को? तो आज के लिए हम लोग अपना टॉपिक यहीं पर ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि AD ग्रेटर देन AS और AD लेस देन AS ये टॉपिक ब्रीफ में या आई कुड से इतने अच्छे से इलाबोरेट करके मैं आपको कल समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक साथ सारा टॉपिक डाइजेस्ट होगा नहीं। सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वापस से 6 मार्क्स के पीछे भागेंगे, और AD ग्रेटर देन AS होगा तब क्या होगा, और AD लेस देन AS होगा तो क्या होगा। अब हमारे इस चैप्टर के सिर्फ 2 लेक्चर बाकी हैं। कितने लेक्चर? 2 लेक्चर। उस 2 लेक्चर में हमारे 30 मार्क्स पूरे आ जाएंगे। आज के लिए होमवर्क में आप लोग क्या करोगे? इस लीनियर सेविंग फंक्शन को जो है इस पूरे टेबल को वापस से आप एक्सप्लेन करोगे, y की लेवल अलग अलग चेंज करके। ये सब वर्क जो है आप अगेन इसमें करोगे क्लास वर्क नोटबुक के अंदर, और होमवर्क नोटबुक के अंदर आप लोग करोगे इस AD और AS अप्रोच। भले देख के करना, लेकिन करना जरूर। समझ में आया सभी को? ये हुआ आपका होमवर्क आज का।